Good day, students. The question is, what is psychology and sports psychology? These days, sports competitions are very tough. Players are using best techniques and best training methods for better results. Even then, they are not satisfied by their results. Thus, importance of psychology was realized in physical education to give best possible results of players. Sports psychology is the branch of psychology which deals with behavior of sports person during training and competition period to increase performance. It guides coaches and players to give individual attention regarding various methods and various techniques. It guides sports ethics and sportsmanship to develop sports attitude. The knowledge of sports psychology helps coaches and players to develop and control एंजाइटी लेवल। हिंदी में जानते हैं मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान की परिभाषा। आजकल खेल मुकाबले कड़े होते जा रहे हैं। खिलाड़ी नए नए तरीके तथा प्रशिक्षण विधियां अपना रहे हैं। तब भी खिलाड़ी अपने परिणामों से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए बेहतर संभावित परिणाम देने के लिए शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व महसूस किया गया। खेल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल तथा प्रतियोगिता के समय खिलाड़ी के व्यवहार के बारे में ज्ञान देती है, जिसके द्वारा खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रशिक्षकों तथा खिलाड़ियों को बेहतर तकनीक तथा विभिन्न विधियों पर ध्यान दिलाने में सहायता करता है। ये खेल नैतिकता तथा खिलाड़ी भावना के बारे में मार्गदर्शन करता है। खेल मनोविज्ञान का ज्ञान जोश के स्तर को नियंत्रित करने के बारे में सहायता करता है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी is derived from Latin word psyche and logos, which means soul study. Today, psychology is considered as the science of behavior. This definition has passed through many stages. Earlier, psychology was considered as science of soul. Later, it was believed to be science of consciousness of mind. Now, it is recognized as the science
ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान शब्द लैटिन के दो शब्दों सायक तथा लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा और विचार। आजकल मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। ये परिभाषा बहुत समय तक कायम रही। इससे पहले इसे मन की जागरूकता समझा जाता था। अब इसे व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान माना गया है। आई बात समझ में आपके? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ही सेज साइकोलॉजी is the scientific study of the individual's activity in relation to environment। वुडवर्थ के मतानुसार मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की क्रियाओं व संबंधित वातावरण से है। इतना समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल, he says psychology is the positive science of conduct of behavior। मैकडॉगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार के तरीकों का संचालन करना है। समझे? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, psychology is the science of human behavior and its relationship। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मनुष्यों के संबंधों का अध्ययन है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ें। इट इज एक्सेप्टेड as science because it involves certain principles like investigation, classification, verification and generalization, etc. In psychological research, there are valid and reliable tools which help in arriving at a confirmed conclusions. Apart from this, psychology throws light on the deep study of relation between mind and body, like behavior, attitude, interest, thinking, incentives, emotions, motivation, memory, feelings of behavioral responses, etc. हिंदी में जानते हैं। इसे विज्ञान के रूप में मान्यता मिल गई है क्योंकि इसमें जांच, वर्गीकरण, सत्यापन आदि सम्मिलित हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में मान्य और विश्वसनीय साधन हैं जिनके द्वारा पक्का सार निकालने में सहायता मिलती है। इससे अलग मनोविज्ञान मन और शरीर के संबंध में गहन अध्ययन पर प्रकाश डालता है, जैसे व्यवहार, प्रवृत्ति, शौक, सोच, प्रेरणा, भावना, प्रोत्साहन, स्मृति इत्यादि। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी।
Sports psychology is the branch of applied psychology which deals with sports performance and behavior of a player during training and competition. So, it is the science which studies players' behavior to improve परफॉर्मेंस। हिंदी में जानते हैं, खेल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों तथा खिलाड़ी दलों के व्यवहार से संबंधित है। ये मनोविज्ञान का वह रूप है जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अध्ययन करता है। समझ गए? द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी is increasing as problems of sports persons has increased. Today, competition are tougher than before, and there is lot of stress over players. To relieve the stresses and to modify behavior towards high performance is the objective of sports psychology. Sports psychology help coaches to make the best selection of players. It guides good coaching methods. It also prepares players for various stresses situations and motivate players to perform better, etc. हिंदी में जानेंगे, जैसे जैसे खिलाड़ियों की समस्याएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे खेल मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। पहले के मुकाबले आजकल स्पर्धा कड़ी होती जा रही है और खिलाड़ी के ऊपर दबाव अधिक हो रहा है। खेल दबाव को हटाना तथा व्यवहार में सुधार करना खेल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। समझ गए? खेल मनोविज्ञान कोच को बेहतर चुनाव करने में सहायता करता है। ये कोच को खेल की बेहतर तकनीक के प्रयोग करने में मदद करता है। खिलाड़ियों को विभिन्न हालातों के लिए तैयार करता है तथा खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। समझ गए आप लोग? तो ये थे डेफिनेशंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है? अभी आपने जाना मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान के बारे में। अब अगला प्रश्न शुरू होता है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा। चलिए शुरू करते हैं। द फिजिकल एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट under which development is caused by the physical activities. There is an important role of motivation in physical activities. We can not uplift standard of sports without motivation.
It is great problem of physical education teachers and coaches that the motivation lacks in the students. The motivation plays an important role in all the fields of sports. Therefore, success and failure in games depend upon motivation. हिंदी में जानते हैं, प्रेरणा एक अत्यंत ही विस्तृत विषय है। इसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। कुछ शोधकर्ता एवं मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। सबसे पहले प्रेरणा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का एक विषय है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा शारीरिक विकास होता है। शारीरिक गतिविधियों में प्रेरणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम प्रेरणा के बिना खेलों के स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते। खिलाड़ियों में प्रेरणा का अभाव शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए चिंता का विषय है। प्रेरणा खेल के मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सफलता तथा असफलता प्रेरणा पर निर्भर करते हैं, मोटिवेशन पर निर्भर करते हैं। आइए जानते हैं कि प्रेरणा क्या है। Definitions of motivation. According to Elizabeth Duffy, the direction and intensity of behavior. एलिजाबेथ डफ के अनुसार प्रेरणा व्यवहार की तीव्रता और दिशा का नाम है। समझे? According to Gardner Murphy, general name for the fact that an organism's acts are partly determined by its own nature or internal structure. गार्डनर मर्फी के अनुसार प्रेरणा किसी व्यक्ति के कार्यों का सामान्य नाम है। जो कार्य उसकी अपनी प्रकृति अथवा आंतरिक संरचना से आंशिक रूप से निर्धारित हो सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेरणा वह शक्ति है जो दूसरों के द्वारा खिला। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 नेचुरल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन। सेकंड टाइप इज आर्टिफिशियल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन। Internal motivations are those which are inborn. Some of them are as under. Number 1
physical motivation, hunger, thirst, etc. Second, internal motivation, hobby, will, etc. Emotional motivation, love, success, safety, etc. Social motivation, social pressure or needs. Natural motivation, self-respect, leadership. Imitative motivation, to copy other well-known players. हिंदी में जानते हैं प्राकृतिक प्रेरणा अथवा आंतरिक प्रेरणा। प्रकृति या आंतरिक प्रेरणा इस तरह की प्रेरणा होती है जो कि खिलाड़ी के भीतर जन्म के समय भी मौजूद होती है। समझ गए? प्राकृतिक प्रेरणाएं इस प्रकार हैं। शारीरिक प्रेरणा, इसमें भूख, प्यास, काम आदि आते हैं। आंतरिक प्रेरणा, इसमें शौक, इच्छा इत्यादि। भावनात्मक प्रेरणा, प्यार, सफलता, सुरक्षा व अपनापन आदि शामिल हैं। सामाजिक प्रेरणा में सामाजिक प्रगति व सामाजिक ज़रूरतें इत्यादि शामिल हैं। प्राकृतिक प्रेरणा आत्मसम्मान, नेतृत्व व विश्वास आदि तथा नकल करने की प्रेरणा, अच्छे खिलाड़ियों की नकल करना आदि शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक प्रेरणा के बारे में आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा या कह सकते हैं अप्राकृतिक प्रेरणा। एक्सटर्नल मोटिवेशन also plays an important role in creating good sportsmen. Physical teachers and coaches play a vital role in it when they encourage their thoughts, and with this encouragement the tots take enhanced interest in their respective games. Some of the external motivations are as under. पहले जान लेते हैं कि अप्राकृतिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा क्या होती है। कृत्रिम या बाहरी प्रकार की प्रेरणा का भी खेलों की निपुणता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक व कोच बाहरी प्रेरणा के द्वारा ही खेल में निपुणता लाने में के लिए सफल हो सकते हैं और खिलाड़ी प्रेरणा के द्वारा मन लगाकर अभ्यास करते हैं। बाहरी प्रेरणा कुछ इस तरह की होती है, अभी हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है रिवार्ड। मटेरियल रिवार्ड्स एज मेडल्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज और कैश मनी एट्सेट्रा हैज़ ग्रेट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। Rewards are various types like job, professional security, honor, social status, recognition, etc. सबसे पहले आएगा रिवार्ड, पुरस्कार। धातु के मेडल,
दूसरी रोज़ काम आने वाली बस्तियों तथा नकद पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी के लिए प्रेरणा का काम करते हैं तथा इनका प्रभाव खिलाड़ी के प्रदर्शन पर पड़ता है। इनाम कई तरह के हैं, जैसे नौकरी, पेशे की सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक रुतबा आदि। समझ गए? आगे बढ़ें। दूसरे नंबर पे आता है पनिशमेंट, सज़ा। पनिशमेंट हैज़ इट्स ऑन impact on performance in certain limit. Punishment is of various types like physical punishment, blame, economical punishment, social withdrawal, etc. As far as possible, such motivations should be avoided. These can lead to loss of interest. हिंदी में जानते हैं, सज़ा खिलाड़ी के प्रदर्शन पर अपना असर करती है। सज़ा जैसे शारीरिक सज़ा, उत्तरदायी ठहराना, आर्थिक सज़ा, सामाजिक बहिष्कार आदि। जहाँ तक हो सके इनसे बचना चाहिए। इससे खेलों के प्रति रुचि खत्म हो सकती है। समझ में आ गई आपके बात? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, कंपटीशन। दिस मेथड हेल्प अस टू नो आवर एबिलिटीज, डेफिशिएंसी and comparison in relation to others. It acts as feedback to overcome our deficiencies and improve further. प्रतियोगिताओं द्वारा हमें अपनी योग्यता, अक्षमता तथा दूसरों से तुलना के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें अपनी अक्षमताओं के बारे में जानकारी तथा आगे प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज विच एनकरेज वन टू डू continuous progress. सक्रिय सहभागिता से नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, जिससे लगातार प्रगति करने में मनोबल बढ़ता है। समझ गए? आगे चलें। नंबर 5, ऑडियो विजुअल एड्स। In effective learning, there is more clarity of goal, which involves large number of sensory organs. Thus, audio-visual aids are effective in motivation. प्रभावशाली तरीकों से सीखने से लक्ष्य पाने में आसानी होती है, जैसे चित्रों द्वारा, फिल्म द्वारा तथा आंखों देखा हाल। ये भी एक सीखने का प्रभावशाली तरीका है। आगे बढ़ते हैं। टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप। हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स and students improves learning. Thus, performance is increased. गुरु शिष्य में अच्छे संबंधों
से सीखने में आसानी होती है तथा शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अच्छा व्यवहार खिलाड़ी की भावनाओं और उसकी ज़रूरतों का अंदाज़ा हो जाता है। आगे बढ़ें। टीचिंग मेथड्स। An effective teaching method directly influences for a high performance। हिंदी में जानेंगे शिक्षा की विधि। प्रभावशाली शिक्षा के तरीके खिलाड़ी के प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इससे भी खिलाड़ी प्रेरित होते हैं। The next is equipments and surrounding. Modern equipments and healthy surrounding act as motivating factors for high performance. उपकरण और वातावरण। आधुनिक उपकरण तथा स्वस्थ वातावरण भी अच्छे प्रदर्शन में प्रेरक तत्वों का कार्य करते हैं। तो आप सबने प्रकार भी समझ लिए, प्रेरणा के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा के प्रकार जानने के बाद हम जानेंगे कि प्रेरणा का महत्व क्या है। Importance of motivation for sports performance. The importance of motivation to achieve perfection in sports is universally accepted. Unless the players are motivated, they will not ready to learn anything, and no good results can be expected without motivation. For the attraction of games, the motivation plays a very important role. To achieve these goals, the player tolerates many hardships. हिंदी में जानते हैं। खेलों में निपुणता के लिए प्रेरणा के महत्व को विश्व पूरा संसार स्वीकार कर चुका है। खिलाड़ी जितनी देर तक प्रेरित नहीं होता है उतनी देर तक उसमें कुछ सीखने की रुचि नहीं होती। प्रेरणा के बिना अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती है। खेलों में आकर्षण के लिए प्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खिलाड़ियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। To achieve these goals, the players tolerates many hardships. Number 1, the player should remain healthy, physically and mentally fit, and free from diseases. Number 2, to get leadership as a captain of the team. Number 3, prizes, promotions or such types of rewards. खिलाड़ी स्वस्थ शारीरिक तथा मानसिक रूप से योग्य तथा निरोगी होने चाहिए। समझ गए? नंबर 2,
नेतृत्व की प्राप्ति के लिए, जैसे टीम का कप्तान बनना अथवा कोई और नेतृत्व करना, जिसके द्वारा उसके भीतर की भावनाओं को आराम व राहत मिल सके। नंबर 3, पुरस्कार, तरक्की, पद उन्नति अथवा इस तरह के और उद्देश्यों की पूर्ति आदि से गुजरना पड़ता है। समझ में आगे बढ़ें। मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द गेम, but also help to keep away from bad habits, weaknesses, and other bad things. The motivation inculcates courage, fearlessness, and sense of sacrifice. The player does not think in terms of rich and poor, high to low status. Mental satisfaction of the performance is its main aim. Understood? In this way, we can say that to get perfection in sports, the motivation is must. हिंदी में जानते हैं, खिलाड़ियों के भीतर प्रेरणा उनके अपने खेल स्तर को ऊंचा उठाना और सुधार लाने में सहायता करती है। वहीं पर खिलाड़ी के भीतर आए दोषों व कमियों को भी दूर करती है। हौसला, बहादुरी व नम्रता के गुण व्यक्ति अथवा खिलाड़ी के भीतर किसी न किसी विशेष प्रेरणा से ही आते हैं। समझ गए आप लोग? इसके साथ छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं आता। मन की शांति और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरणा के स्रोतों का भरपूर उपयोग होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि खेल निपुणता के लिए प्रेरणा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, जरूरी व लाभदायक है। तो ये थे खेल सुधार के लिए प्रेरणा का महत्व। आज के लिए इतना काफ़ी है, देख लो, ठीक है, आगे बाद में देखेंगे। थैंक यू।